Good evening, students. In the previous class of need-based classes, we have just completed the topic Plasmodium. Today, we start the topic virus. So, our today's topic is viruses. Okay, and these viruses are, first of all, we know that the virus has been derived from a Latin word which means poison, venom or viscous fluid. The term virus has been taken from Latin word, which means, इसका मतलब क्या होता है? Which means what? Which means poison, इसको जहर बोलते हैं, और venom, ये भी जहरीला पदार्थ हो गया, और viscous fluid, Now, basically the viruses remain inactive outside the living host, but when it enters the living host, it use the metabolism of the host and become active. Okay, viruses are inactive outside the living host. Viruses are inactive outside the living host, but viruses become active inside the living organism's body. But when the viruses enter the living organism's body, they become active. ठीक है? And start to multiply in it. ठीक है? Next, virus always represented, or we can say the viruses always represented a transitional form of life. Transitional form of life means they are between living character and non-living character. Viruses represent transitional form of life. वायरस इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ट्रांजिशनल फॉर्म ऑफ लाइफ, दैट इज इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग. ठीक है, इन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग organism or world. Now, Luria, a scientist in 1953, defined viruses. Luria in 1953 defined viruses. How he defined viruses? He defined viruses, Luria defined viruses as a submicroscopic entity capable of being introduced into the living host. ठीक है? Viruses are submicroscopic entities capable
of being introduced, capable of being introduced into the, capable of being introduced into the specific living host, specific living host, ठीक है, and reproducing inside such living cells, such living cells only, यानी जिस स्पेसिफिक लिविंग होस्ट के अंदर में ये वायरस इंटर किया उसी के अंदर में ये रिप्रोड्यूस भी करेगा एंड इंक्रीज इट्स नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज करेगा। सिंगल वायरस इज कॉल्ड वायरॉन, सिंगल virus is called viron. In the next class we will completely describe specially viron. Okay, now note, most of the plant viruses are having RNA as a genetic material and most of the animal viruses are having DNA as a genetic material. Okay, most of the plant viruses are RNA virus and most of the animal viruses are DNA virus. That is the main difference. ठीक है? Now we should know some discoveries through which we came to know about viruses. ठीक है? यहां तक समझ आया? Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरीज के बारे में, है ना? Important discoveries, important discoveries of viruses, First, Carolus causius. Carolus causius. Okay, in 1576, first of all recorded viral disease in tulip flower. In 1576, first of all recorded viral disease, in tulip. This is the first historical account. Next, A. Mayer in 1886, A. Mayer in 1886, उन्होंने क्या किया? Found a disease in a tobacco that is caused by virus and he called it tobacco mosaic virus. A. Mayer, 1886. Okay, first of all, ठीक है, first found a disease in tobacco caused by virus called tobacco mosaic virus.
जिसको हम लोग बोलते हैं TMV, TMV. Second, D. Ivanovsky in 1892, who is also regarded as the discoverer of virus. D. Ivanovsky. D. Ivanovsky, 1892. Okay. A Russian botanist discovered the infectious nature. Discover the infectious nature of viruses. उन्होंने ये प्रूफ किया और डिस्कवर तो किया ही कि वायरस आर इन्फेक्शियस. ठीक है, वो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है. ठीक है, आर इन्फेक्शियस. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड वायरस. ही ऑल्सो डिस्कवर्ड वायरस. कौन डिस्कवर किया था वायरस को? डी इवानोव्स्की. नेक्स्ट क्या है? बेजरनिक. बेजरनिक ने वायरस को कहा था, ठीक है, इन्फेक्शियस फ्लूइड, है ना, एक लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड, जिसका एक उन्होंने एजम्पशन दिया था कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम. ओके, बेजरनिक, BEIJIERNICK. बेजरनिक 1998. ओके, क्या बोला था? कॉल्ड वायरसेस लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. ठीक है, उसका एजम्पशन किया था. और कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम. कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडियम, इसका इंग्लिश मीनिंग है लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड. टॉट एंड हर्ले discovered bacteriophage. What are bacteriophage? Those virus which has the capacity to infect and destroy the bacterial cell are called bacteriophage. W. Todt, okay, in the year 1915, and D. Hurley in the year 1917 discovered bacteriophage. A kind of viruses which infect and destroy the बैक्टीरियल सेल. किसको डिस्ट्रॉय कर रहा है? बैक्टीरियल सेल. तो खोजा कौन था? W. टॉट एंड D. हर्ले. किसको डिस्कवर किया था? बैक्टीरियोफेज को. वो क्या करता है? इन्फेक्ट करता है और साथ ही साथ डिस्ट्रॉय भी कर देता है बैक्टीरियल सेल को. एंड दिस ग्रुप ऑफ वायरस आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज. यहां तक समझ आया? ठीक है, देखो इसके बाद एक और है, उसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट में आएंगे. W.M. Stanley. ठीक है, ठीक है, the first time isolated
टोबैको मोजाइक वायरस इन अ क्रिस्टलाइज फॉर्म। टोबैको मोजाइक वायरस को उसने किस फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया? क्रिस्टलाइज फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। एंड शोड दैट, और उन्होंने क्या दिखाया पूरी दुनिया को? दैट क्रिस्टलाइन फॉर्म्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, ठीक है। और उनके इस वर्क के लिए स्टेनले को नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज was awarded to him for this work, for this work। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा नेचर ऑफ वायरसेस, है ना। वायरस किस नेचर का है? लिविंग है कि नॉन लिविंग है? अगर लिविंग है तो क्यों है, और नॉन लिविंग है तो क्यों है? दोनों में वाई। नेचर ऑफ वायरसेस, नेचर ऑफ वायरसेस। देखो, बेसिकली वायरसेस आर regarded as an intermediate, viruses are regarded as an intermediate between, किसके बीच में? intermediate between living and non living, living and non living, ठीक है, entities। Next, it is very difficult to sort out whether they are living or non-living. Some characters of virus, some characters of viruses, some characters of viruses suggest them that they are, some characters of viruses suggest them that they are living, while some suggest that they are non-living, they are non-living। Okay, so we will clear both the view. First is viruses are non-living, and the second is viruses are living, ठीक है। First, viruses are नॉन लिविंग। वायरसेस क्या है? नॉन लिविंग। इसको हम प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे? सबसे पहले, द वायरसेस डज नॉट हैव अ कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर, दैट इज दे आर नॉट सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। वायरसेस आर नॉट having complete cellular structure. Viruses are not having complete cellular structure, that is, they means viruses are not surrounded by, वायरस जो है ये ना सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना सेल वॉल से। सेल मेम्ब्रेन और
सेल वॉल। ना वायरस सेल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है ना सेल वॉल, इसका एक कंप्लीट सेलुलर स्ट्रक्चर कंप्लीटली एब्सेंट है। सेकेंड, दे डू नॉट शो सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग एंड इट इज टोटली लैकिंग इन वायरसेस। दे lack cellular they lack cellular metabolism and ठीक है लैक रेस्पिरेशन, लैक रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, दे हैव हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी अनलाइक ह्यूमन बीइंग। दे मीन्स वायरसेस possesses high specific gravity. Okay, viruses possesses high specific gravity unlike living organism. Unlike living organism. Fourth, outside the host body, अगर किसी वायरस को होस्ट बॉडी नहीं मिलेगा तो दे बिहेव एज अ सर्टेन एज गुड एज अ केमिकल सब्सटेंस। मीन्स आउटसाइड अगर होस्ट बॉडी वायरस है तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक क्रिस्टल की तरह है जो कि उसके नॉन लिविंग कैरेक्टर को प्रूफ करता है। ठीक है, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, आउटसाइड द लिविंग बॉडी, आउटसाइड द होस्ट, they are good as chemical substances. They are good as chemical substances. That means they lack independent existence. They lack इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये जो वायरस है उसमें इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होना संभव नहीं है। जब तक उसको होस्ट बॉडी ना मिले वो लिविंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास अपना कोई मेटाबॉलिक सिस्टम है ही नहीं। उसको मेटाबॉलिक सिस्टम किसका चाहिए? होस्ट के बॉडी का। यहां तक ये चारों पॉइंट तक समझ आ गया? देखो, बोला गया कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है नॉर्मली हम लोग का एक ऑप्टिमम लेवल में होता है ताकि हम यहाँ पे सरवाइव कर सकें। लेकिन वायरस का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी वो इतना ज्यादा है कि अगर वो होस्ट बॉडी में नहीं है तो वो एयर में हमेशा एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहा है। ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लायक नहीं है। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में बर्ड्स फ्लाइट कर रहा है तो दे हैव अ फ्लाइट ऑर्गन दैट इज कॉल्ड विंग्स। दे हैव अ स्पेशल बॉडी स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड हैविंग न्यूमेटिक बोन्स दैट इज नॉट प्रेजेंट इन वायरसेस। समझ आया? अब नेक्स्ट, रॉबर्ट कॉच ने पोस्टुलेट्स दिया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको हम इन विट्रो कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन वायरस को हम लेबोरेटरी में कल्चर नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, फिफ्थ, postulates of Robert Koch, ठीक है, are not true for the viruses, are not true for the viruses. Okay, why? Viruses cannot grow in vitro. In vitro का मतलब होता है in laboratory. Cannot grow in vitro
condition cannot grow in vitro condition in labs. ठीक है. और लास्ट absence of growth and division. Absence of growth and division. ठीक है. ये कैरेक्टर प्रूफ कर रहा है कि वायरस क्या है, नॉन लिविंग. लेकिन ये तो कंट्राडिक्टरी टर्म है. जैसे ही हमारे बॉडी में घुसा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुसा, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, या ह्यूमन बीइंग है, या इवन वायरस, ये इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म है. जैसे कि एक बैक्टीरिया, अगर वायरस, बैक्टीरिया के बॉडी में वायरस घुसता है और उस वायरस वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको क्या बोले थे, बैक्टीरियोफेज. ठीक है. लेकिन जब ये होस्ट के बॉडी में गया तब ये नॉन लिविंग नहीं रहा. तो इसलिए सेकंड पार्ट है वायरस आर लिविंग. ये भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि वायरस ऑल्सो हैव लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स. रॉबर्ट कॉच का जो पोस्टर तो बहुत बड़ा है, हम लोग नेक्स्ट में जब बैक्टीरिया पढ़ेंगे. बेसिकली जान लो कि रॉबर्ट कॉच ने ये प्रूफ किया था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसको हम आसानी से लेबोरेटरी में इन विट्रो डेवलप कर सकते हैं. ठीक है. आइसोलेटेड वे में, यानी अकेले भी, जो वायरस के लिए संभव नहीं है. वायरस अगर मल्टीप्लाई करेगा तो उसको हमेशा होस्ट बॉडी चाहिए. समझ आया. अब नेचर ऑफ वायरस में दूसरा क्या होगा, वायरसेस आर लिविंग. वायरसेस आर लिविंग एंटिटीज. लिविंग. पहला पॉइंट क्या होगा कि वायरस आर एबल टू मल्टीप्लाई. ठीक है. तो पहला होगा कि हर एक वायरस का एक डेफिनेट शेप है. जैसे बैक्टीरियोफेज का है टैडपोल लाइक. ठीक है. तो लिखेंगे फर्स्ट, वायरसेस हैव अ डेफिनिट शेप. वायरसेस का एक डेफिनिट शेप है और मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल कैरेक्टर या स्ट्रक्चर है. ठीक है. जस्ट लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक दैट ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. सेकेंड, दे पोजेस अ जेनेटिक मटेरियल. वायरस में या तो जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए होगा या आरएनए होगा, विच डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. वायरसेस हैव देयर जेनेटिक viruses have their genetic material, DNA and RNA. ठीक है. viruses have their genetic material, जिसको DNA या RNA कहा जाता है, which determine their structure. जो क्या करता है, इस वायरस के स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को निश्चित करता है. विच डिटरमाइन देयर स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट. ये कौन करता है, वायरस. किसके द्वारा करता है, जेनेटिक मटेरियल के द्वारा. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल इज ऑल्सो पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. जेनेटिक मटेरियल passes from one generation to another. जेनेटिक मटेरियल पास भी होता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब जितने भी वायरस है दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट. ठीक है. वायरसेस आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट.
obligate intracellular parasite and attack specific host, और ये हमेशा स्पेसिफिक होस्ट को अटैक करेगा। ठीक है, जैसे बैक्टीरियोफेज हमेशा बैक्टीरिया को ही अटैक करता है, किसी दूसरे को नहीं। साइनोफेज हमेशा साइनोबैक्टीरिया को ही अटैक करता है, दूसरे किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं। ठीक है, एज bacteriophage recognize the real bacterial surface, क्योंकि बैक्टीरियोफेज रिकॉग्नाइज करता है रियल बैक्टीरियल सरफेस। ठीक है, ये हो गया वायरस का लिविंग कैरेक्टर। तीसरा, चौथा, वायरस शोज द प्रॉपर्टी ऑफ म्यूटेशन। देख लो ना कोरोना वायरस को, ये लगातार अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, और ये संभव कैसे है? म्यूटेशन के कारण। व्हाट इज म्यूटेशन? फिर ये क्वेश्चन होगा। म्यूटेशन इज अ सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज। म्यूटेशन अचानक होता है, लेकिन होने के बाद ये उस ऑर्गेनिज्म में स्टेबल यानी स्थिर होता है, और ये हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास होता है। दे सो the property of they show the property of mutation. Mutation क्या है? Sudden, stable and inheritable changes. Now let's come to the fifth point. These viruses show irritability and respond to environmental condition. ये 4 पॉइंट समझ आ गया? ठीक है, क्या बोल रहे हो? एक बार ठीक से बोलो। मॉर्फोलॉजिकली हम कब बोले? हम बोले कि वायरस का अपना एक डेफिनेट शेप और मॉर्फोलॉजी होता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब उसका अपना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है। समझ गए? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट। 11-12 का परसेंटेज तो 60-40 है, ये हर साल चेंज होता है, एक बार 11 एक बार 12। अब नेक्स्ट है पॉइंट, वायरसेस shows इरिटेबिलिटी। वायरस क्या शो करता है? इरिटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्ड टू environmental condition, environmental conditions, रिस्पॉन्ड भी करता है environmental condition से, जैसे कि हीट, कोल्ड, ठीक है, ह्यूमिडिटी, ड्रॉट एटसेट्रा। And last but not the least, they can grow inside the host and multiply enormously. बहुत तेजी से वो मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। They can grow inside the host and multiply enormously, बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करता है, showing one of the most important characters of लिविंग। ठीक है,
ये शो करता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। क्यों? क्योंकि ये होस्ट के बॉडी के अंदर ग्रो करता है और बहुत तेजी से मल्टीप्लाई भी करता है, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां तक समझ आ गया? देखो, इन्वायरमेंटल कंडीशन में कभी कभार वायरस डिस्ट्रॉय भी होता है और कभी कभार वायरस तेजी से बढ़ता भी है। वो डिपेंड करता है वायरस किस नेचर का है। कुछ वायरस हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में तेजी से बढ़ता है, कुछ वायरस कोल्ड में तेजी से बढ़ता है। जैसे कि तुम्हारा इन्फ्लुएंजा वायरस, ये ज्यादा कब बढ़ता है? जब लगातार इन्वायरमेंट फ्लक्चुएट करता है। तुम देखना, इन्फ्लुएंजा वायरस ज्यादातर ठंडे में होता है या गर्मी में होता है। कब? जब मौसम ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। जैसे अभी बरसात हो, दिन में गर्मी है, शाम को अचानक बरसात हो जाए, रात को ठंडा लगे, तो ये जो ड्रास्टिक चेंज है वेदर में, ये वायरस को तेजी से बढ़ाता है। ठीक है? और कुछ कर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर रहा हीट, तो वो वायरस को घटाता भी है। ठीक है? समझ आया? मतलब तुम्हारा क्वेश्चन का मतलब क्या है? फिर से बोलो। वो देखो, सबसे पहले तो वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में ही अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि वायरस बेसिकली हमारे बॉडी में आता है थ्रू इनहेलेशन और थ्रू फूड। अगर फूड के थ्रू आएगा तो फर्स्ट अटैक होगा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है? और अगर थ्रू इनहेलेशन हमारे बॉडी में घुसा तो उसका फर्स्ट पार्ट होगा, फर्स्ट अटैक क्या होगा? फर्स्ट अटैक होगा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जैसे कोरोना वायरस जब हम इनहेल के थ्रू जा रहा है ना, इसलिए सबसे पहले हमारे लंग्स को डैमेज कर रहा है। समझ गए? ठीक है? तो बेसिक जो दो ऑर्गन है सबसे पहले इन्फेक्ट होता है, एक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, दूसरा हमारा क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। अब है नेचर ऑफ वायरसेस, खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस। ठीक है? वायरस क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस। Chemical composition of viruses. Chemically, viruses are nucleoprotein. Nucleoprotein का मतलब होता है that is they are made up of और न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? डीएनए और आरएनए। ठीक है? एंड अ प्रोटीन कोट। एंड अ प्रोटीन कोट, यानी प्रोटीन का कवर होता है जिसको बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ठीक है? तो यही दो चीज से कोई भी वायरस बनता है, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन, इसलिए इसको न्यूक्लियो प्रोटीन कहा गया है। ठीक है? न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड रिप्रेजेंट क्या करता है? रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। रिप्रेजेंट द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द viruses. ठीक है? Now TMB has RNA as a genetic material, like most of the plant which have a genetic material as a RNA. ठीक है? Tobacco mosaic virus has DNA as a genetic material. Most of the plant viruses में भी यही है। ठीक है? लेकिन इन्फ्लुएंजा वायरस में 10% आरएनए और 90% प्रोटीन है।
इन्फ्लुएंजा वायरस, टेन परसेंट क्या है आरएनए एंड 90% प्रोटीन है। 10% आरएनए है और 90% प्रोटीन है। अब नेक्स्ट है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस है इसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है, बट इट लैक, इसके पास क्या नहीं है, इट लैक कैप्सिड, प्रोटीन कोड एब्सेंट है। ठीक है, अब ये हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस। नेक्स्ट, प्लांट वायरस बेसिकली आरएनए कंटेन करता है, लेकिन जो कॉलीफ्लावर मोजाइक वायरस है वो एक एक्सेप्शन है, उसमें डीएनए है एज अ जेनेटिक मटेरियल। प्लांट वायरसेस हैव आरएनए एज जेनेटिक material, but cauliflower mosaic virus have DNA as a genetic material। तो ये एक एक्सेप्शन केस हो गया। ठीक है, उसके बाद बैक्टीरिया कंटेन डीएनए। बैक्टीरियोफेज क्या है, एनिमल वायरस है, इसमें बेसिकली डीएनए है, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एनिमल वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है और हाफ में डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। जैसे ये जो कोरोना वायरस है क्या है, रिट्रोवायरस ग्रुप का है और इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, और ये क्या है, एनिमल वायरस है। ठीक है, बैक्टीरियोफेज has DNA as a genetic material, DNA as a genetic material, and almost half animal animal का आधा नहीं, half animals, half of the animal virus percentage, animal virus have RNA and half have DNA as a genetic material। लेकिन क्योंकि डीएनए का परसेंटेज थोड़ा ज्यादा है ऑकरेंस का, तो मोस्ट कॉमनली बुक में लिखा हुआ जाता है कि इन ए प्लांट वायरस आरएनए इज मोस्टली जेनेटिक मटेरियल एंड इन एनिमल वायरस डीएनए इज द मोस्ट कॉमन जेनेटिक मटेरियल। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि डीएनए लिख दिया तो सब में डीएनए है, सम आल्सो हैज आरएनए। अभी हम प्रूफ किए रिट्रोवायरस, एचआईवी में क्या है, आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और जिसमें आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल होता है वो ज्यादा खतरनाक भी होता है, क्योंकि आरएनए एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि उसका इंजाइमेटिक नेचर है, और इसमें इसलिए उसमें म्यूटेशन होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, और इसलिए कोरोना वायरस भी इतना ज्यादा म्यूटेट कर रहा है, इतना ज्यादा चेंज कर रहा है अपने शेप और साइज को, ड्यू टू द आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। समझ आया? अब जान लो कि जो कैंसर कॉजिंग वायरस है जिसको हम लोग बोलते हैं रियो वायरस, उसमें डीएनए और आरएनए दोनों है। ठीक है, कैंसर कॉजिंग वायरस किसको बोलते हैं, रियो वायरस।
have RNA and DNA both. ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है ना। कुछ इंजाइम्स भी इस वायरसेस के द्वारा रिलीज होता है, ठीक है। सम enzymes are also detected in some viruses. कैसे? जैसे कि लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम इन बैक्टीरियोफेज, इन बैक्टीरियोफेज, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इन वैक्सीनिया वायरस, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एज अ बैक्टीरियल वायरस, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम एज अ बैक्टीरियल वायरस, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए एंड आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ये तीनों कौन रिलीज करता है? रिट्रोवायरसेस, रिट्रोवायरसेस। इसका कॉमन मेंबर है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरसेस, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वायरसेस। यहां तक समझ आया? मिटा दे। Yes, sir. अब हम लोग पढ़ेंगे शेप ऑफ द वायरसेस, है ना, शेप और उसका एग्जांपल। शेप, now there is a variation in the shape of the viruses, and on the basis of shape viruses are divided into 5 types. There are variation in the shape of the viruses on the basis of which it is divided into, on the basis of which it is divided into 3 types. इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया, ठीक है, 5 टाइप, सॉरी। पहला क्या है? पहला है स्ट्रेट रिजिड रॉड विथ हेलिकल आर्किटेक्चर, स्ट्रेट रिजिड रॉड विथ हेलिकल आर्किटेक्चर। देखो, इसका मतलब हो गया ये स्ट्रेट होगा, रिजिड रॉड शेपेड इस तरह का होता है, कैप्सूल शेप का होता है, रॉड शेपेड स्ट्रक्चर होगा जिसका हेलिकल सिमेट्री होगा, ठीक है। सिमेट्री का मतलब बॉडी प्लान। अब इसका सबसे कॉमन एग्जांपल क्या होगा? टीएमबी। टीएमबी का मतलब समझ ही गई होगी, या आप लोग समझ गए होंगे, टोबैको मोजाइक वायरसेस। और बीएसएमबी, बीएसएमबी का क्या होगा? बार्ली स्ट्राइप मोजाइक वायरस, इसका शॉर्ट फॉर्म है बीएसएमबी, ठीक है। ये पहला टाइप हो गया। दूसरा, लॉन्ग फ्लेक्सस थ्रेड लाइक रॉड, लॉन्ग फ्लेक्सस या फ्लेक्सिबल थ्रेड यानी धागा जैसा, थ्रेड लाइक रॉड,
मतलब रॉड कैप्सूल शेप होगा लेकिन ऐसे हुआ मान लो, तो ये धागा जैसा ही हो गया, लंबा, है ना। तो इसके अंडर में कौन आएगा? इसके अंडर में आएगा PLM, पोटैटो लैटेंट मोजाइक वायरस, PLM। कुछ जगह में V लिखा हुआ रहता है, V नहीं भी लिखा हुआ रहता है। दूसरा क्या होगा? व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस, व्हीट स्ट्रिक मोजाइक वायरस, ठीक है। इसका शेप हो गया थ्रेड लाइक, रॉड मतलब कैप्सूल जैसा होगा लेकिन पतला कैप्सूल होगा, लंबा, ठीक है। तीसरा क्या है? पॉलीहेड्रल वायरस, पॉलीहेड्रल वायरस। पॉलीहेड्रल वायरस में क्या एग्जांपल होगा? सबसे कॉमन है टर्निप येलो मोजाइक वायरस, टर्निप येलो मोजाइक वायरस। दूसरा एग्जांपल टोबैको रिंग स्पॉट वायरस, टोबैको रिंग स्पॉट वायरस। पहला है टर्निप येलो मोजाइक वायरस, दूसरा है टोबैको रिंग स्पॉट वायरस। फोर्थ, टैडपोल लाइक, इसका तो सबसे कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरियोफेज। हम शुरू से बोल रहे हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या है? दोज वायरस विच इन्फेक्ट एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल। एंड लास्ट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या होगा? इन्फ्लुएंजा वायरस। एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। तो these are the 5 shapes, ठीक है। on the basis of shape these are the following type of viruses। यहां तक समझ आ गया? Yes, sir. अब आज का लास्ट टॉपिक, साइज ऑफ द वायरस। वायरस का साइज 10 म्यूएम से लेके 300 म्यूएम के बीच होता है। जो लॉन्गेस्ट वायरस अभी तक पाया गया है वो है स्मॉल पॉक्स वायरस, जिसको वेरियोला वायरस कहा जाता है, 250 म्यूएम का, ठीक है। शेप ऑफ द वायरस, शेप, ठीक है। अब हो गया साइज, सॉरी साइज। शेप तो हो ही गया 5 तरह के। वायरस हैव अ वेरी लॉन्ग रेंज ऑफ साइज। वायरस हैव लॉन्ग रेंज ऑफ साइज। वायरस में लॉन्ग रेंज ऑफ साइज है, that is they range from 10 μm, ठीक है। they range from 10 μ to 300 μ, 300 μ, ठीक है। द वायरस ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज, जो एनिमल में सबसे कॉमन है, फुट एंड माउथ डिजीज वायरस, ठीक है। क्या लिखेंगे? द वायरस ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज, यानी फुट एंड माउथ डिजीज वायरस जो है, ठीक है, ऑफ एनिमल इज smaller than the largest protein molecule, ठीक है। यानी सबसे छोटा है ये, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट। जबकि जो लार्जेस्ट वायरस है, लार्जेस्ट वायरस है वो क्या है? स्मॉल पॉक्स वायरस, स्मॉल पॉक्स वायरस, ठीक है। नाम कॉमनली वेरियोला। वेरियोला कितना साइज? 250 mm। क्या साइज है? 250
V1. So this is the size of the viruses. यहाँ तक समझ आ गया? Yes, sir. That's all for today. In the next class, we will discuss the rest part. That is first is chemical composition. तो complete हो चुका है. Proper structure, envelope क्या है, प्रोटीन कोट क्या है ना, इसका टेल क्या है, स्पाइक्स में कौन सा केमिकल रहता है. उसके बाद टाइप्स ऑफ वायरस, एनिमल वायरस, प्लांट वायरस, बैक्टीरियल वायरस, ये सभी के केमिकल स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन, मोड ऑफ इन्फेक्शन, क्योर, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.